So today we are going to learn about, or we are going to start with CCNA, and it is called Cisco Certified Network Associate. So it is an associate level exam, right? And to get the global certification for CCNA, you need to qualify 200301. CCNA 200301. This is exam code that you need to qualify, जो आपको पास करना होता है to get the global certification of CCNA. Okay. In CCNA, we are going to start with network fundamentals. Okay. सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे network fundamentals. In network fundamentals, we will discuss all the basics of network, like what is network, what are the different types, then TCP/IP model, OSI model, IPv4 addressing, IPv6 addressing, subnetting, okay, and network cables, network devices, all these things will be the part of network fundamentals. After that, we will learn about routing and switching. In routing and switching, we will see how can we configure Cisco routers and Cisco switches so that they can forward the data, they can forward the packets. Okay. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे different series of Cisco routers and different series of switches, how to configure them, how to access them. आप switching protocols कैसे configure करोगे, routing protocols कैसे configure करोगे. All these things will be discussed in routing switching. And then we will discuss about IP services. In IP services, we will see different protocols and services that can be used to, you can say, enable some data transmission. जैसे अगर आप कोई वेब सर्वर होस्ट कर रहे हो तो फिर आपको HTTPS सर्विस कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, राइट? तभी आप वेब सर्वर होस्ट कर पाओगे. Other than this, if you are hosting any DNS server or NTP server, then you have to use their respective protocols. जैसे DNS यूज करना पड़ेगा, NTP यूज करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे IP सर्विसेज पढ़ेंगे, टेलनेट, SSH, Syslog, SNMP, FTP, TFTP. Okay, all these services will be discussed. Then we will learn about security fundamentals. In security fundamentals, we will see, or we will discuss about objectives of network security. Okay, and after that, we will see how to implement how to implement security for router access or switch access. Means management access को आप कैसे secure कर सकते हो, telnet और SSH को आप कैसे secure कर सकते हो. Okay, then we will see basic security threats, जैसे risk क्या होता है, virus क्या है, worm, trojan, different types of virus are there, right? तो वो थ्रेट्स भी पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसमें काउंटर मेजर, वल्नरेबिलिटीज, ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे. ओके, एंड देन इन सिक्योरिटी वी विल डिस्कस अबाउट लेयर 2 सिक्योरिटी, where we will configure some security features on Cisco switches. Okay, then we will also learn about layer 3 security, in which we will discuss about routing protocol security. We will also discuss about control plane police, control plane protection. ये सारे security features होते हैं जो हम लोग अपने devices पे enable कर सकते हैं. Okay, तो वो हम लोग security fundamentals में करेंगे. Then we will discuss about wireless implementation. In this new CCNA version, we have a section for wireless implementation, in which we will learn about how to set up a Wi-Fi network. आप देखोगे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो भी नेटवर्क्स होते हैं, जो भी साइट्स होते हैं, जब भी आप वहाँ पे अपना डेटा एक्सेस करना चाहते हो एज एन एम्प्लॉय, तो आप उनके वायरलेस नेटवर्क से भी कनेक्ट हो सकते हो. ओके, because that is more flexible. You can connect your mobile devices to access network resources, right? You are not dependent to the desktop PC only. आप मोबाइल डिवाइस से, टैबलेट से, लैपटॉप से भी कनेक्ट होके अपने नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो. तो वहां पे देखेंगे कि आप वायरलेस इंप्लीमेंटेशन में कौन कौन सी डिवाइसेस यूज करोगे. जैसे सिस्को WLC होता है, वायरलेस लैन कंट्रोलर, सिस्को AP होता है, एक्सेस पॉइंट. इनको आप कैसे कॉन्फ़िगर करते हो, मैनेज करते हो, ट्रबल शूट करते हो, ये सारी चीजें हम लोग वायरलेस इंप्लीमेंटेशन में पढ़ेंगे. ओके, एंड इन द एंड वी विल डिस्कस अबाउट ऑटोमेशन एंड नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी. ओके, ऑटोमेशन एंड नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी, इसमें हम लोग पढ़ते हैं व्हाई. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड ऑटोमेशन, हमें ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है नेटवर्क, राइट? एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स. Okay, then we will see data encoding methods like JSON, YML, XML. Okay, then we will also see some automation tools like Chef, Puppet, Ansible, Postman. ये tools होते हैं जो हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे. After that, we will discuss about API. API introduction is also there, application programming interface. तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत discussion करेंगे. Okay, and then we will discuss about SDN, software defined networking, which is also the part of CCNA as an introduction of SDN and SD-WAN, SD access, जो advanced software defined technologies network में use हो रही हैं, उनका भी introduction हम लोग automation में पढ़ेंगे. Okay, so all these things will be covered in CCNA. Clear? And we are going to cover all the topics which are the part of your CCNA blueprint. Okay.
जो भी आप देखोगे वहाँ यहाँ हम लोग सारी चीजें कवर करने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक नेटवर्क। तो क्या होता है नेटवर्क, बताओ आप। Network, like we have created a LAN and we are using वो तो internet. टाइप हो गए। नेटवर्क क्या होता है, आप नेटवर्क कैसे डिफाइन करोगे? Network is just more adding store protocols. प्रोटोकॉल तो बात की बात, राइट। तो आप नेटवर्क डिफाइन कर सकते हो, ए नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस which can communicate with each other, right? A network is a group of interconnected devices which can communicate with each other. Now, why devices communicate? बताओ, करना ही क्यों है? Why devices will communicate with each other? क्यों? क्यों We devices? want to share any हाँ, data to. yes. Devices will communicate with each other, or devices communicate with each other to exchange or share, you can say, network resources. Network resources like files, printers, servers, right, etc. Okay. Clear. This is called a network. Now, in the network, we use some network devices, we use some network cables, so that we can create a network. हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे राउटर लगाते हैं, स्विच लगाते हैं, कंप्यूटर्स लगाते हैं, राइट, और प्रिंटर्स लगाते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइसेस होती हैं, आईपी कैमरास होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइसेस होती है नेटवर्क में। ये सारी डिवाइसेस लगाते हैं और फिर इनको आप केबल से कनेक्ट कर देते हो। समटाइम्स इट कैन बी वायरलेस, बट फॉर नाउ लेट्स कंसीडर दे आर कनेक्टेड विद सम केबल्स। maybe it is ethernet cable or fiber optic cable, okay, कोई भी केबल हो सकती है, डिपेंड्स ऑन योर नेटवर्क टाइप, ओके। जो केबल से कनेक्टेड डिवाइसेज हैं वो कम्युनिकेट कर सकती हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए नेटवर्क, ओके। एंड दे कम्युनिकेट बिकॉज दे वांट टू शेयर सम फाइल्स बिटवीन देम। maybe here you can say you have a Windows PC, okay, and you have another Windows PC. Now, on this Windows PC, you have a file, a text file, and you want that this text file should be available on this PC also. So what you can do, अगर आपके पास पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहां से कॉपी पेस्ट मार के यहाँ पे कर दोगे। लेकिन नहीं है अगर, फिर क्या करोगे, है ना। तो वहां पे क्या होता है, अपने कंप्यूटर्स में एक एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम लोग लैन पोर्ट बोलते हैं, ईथरनेट पोर्ट बोलते हैं, ओके। ठीक है, लैन पोर्ट भी बोलते हैं, ईथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं। एनआईसी इज एक्चुअल वर्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो यू विल यूज एन ईथरनेट केबल टू कनेक्ट दीज टू कंप्यूटर्स, ओके। अब ये दोनों नेटवर्क का पार्ट हो गए। नाउ दीज टू डिवाइसेस आर क्रिएटिंग ए नेटवर्क because this computer will be able to access this second computer, you can say, okay, and it will be able to copy the file, download the file, you can say। अब यहाँ से आप अगर यहाँ कंप्यूटर हटा के एक सर्वर लगा दो, राइट, जैसे अगर आप google.com एक्सेस करने जा रहे हो, facebook.com एक्सेस करने जा रहे हो, तो उनका क्या होता है, सर्वर ही तो होता है। तो दिस इज वन एंड पॉइंट एंड दिस इज अनदर एंड पॉइंट। पीसी आपका एक एंड पॉइंट है, सर्वर आपका एक एंड पॉइंट है। इन दोनों के बीच में अगर आप डेटा शेयर करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू मेंटेन द रीचेबिलिटी बिटवीन देम। आपको क्या मेंटेन करनी होती है, रीचेबिलिटी, कि दोनों डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सके, कनेक्ट कर सके, राइट। उसी को नेटवर्क बोलते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ नेटवर्क, बताओ कौन कौन से टाइप होते हैं? LAN, WAN, and providing. मल्टीपल टाइप्स ऑफ नेटवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैन। लैन इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क।
Then we have WAN, wide area network. After that, we have MEN, metropolitan area network. Then PAN, ये क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये वायरलेस में बताऊंगा। ओके, फिर इसके बाद होता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। आफ्टर दैट सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ओके, एंड एक और होता है डब्ल्यू लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, राइट? इट इज ऑल्सो ए सेपरेट नेटवर्क टाइप, वायरलेस लैन, डब्ल्यू लैन। ओके, अब देखो ये तो नेटवर्क टाइप होता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेटवर्क टाइप बेस्ड ऑन साइजिंग, राइट, बेस्ड ऑन साइजिंग, तो सबसे पहले एक होता है देखो स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, इट इज कॉल्ड सोहो, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। ओके, जहाँ पे 3 4 5 कंप्यूटर्स हैं और आप एक नेटवर्क सेटअप करना चाहते हो, जैसे साइबर कैफे का नेटवर्क होता है, वहाँ पे 5 10 कंप्यूटर्स होते हैं। आप अपने घर पे एक छोटा सा नेटवर्क बना लेते हो अगर आपके घर में 3 4 कंप्यूटर्स हैं, राइट? तो ये होते हैं क्या, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। ओके, देन यू कैन से मिड साइज नेटवर्क, जैसे कोई ब्रांच नेटवर्क होता है, वो भी किसमें आता है, स्मॉल ऑफिस में, है ना? जहाँ पे 10 से 12 यूजर्स हैं, 15 यूजर्स हैं, वो स्मॉल ऑफिस होते हैं। फिर होता है मिड साइज नेटवर्क। मिड साइज नेटवर्क मीन्स जहाँ पे आपके पास अप टू 100 यूजर्स, 100 यूजर्स, राइट? आप कह सकते हो कि मान के चलो कोई आपका एक रीजनल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस, जैसे ब्रांच ऑफिसेज होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, है ना, रिमोट साइट्स जिनको बोलते हैं, वो ब्रांच ऑफिसेज होते हैं। अब मान के चलो कोई एक बजाज आलियांज इंश्योरेंस कंपनी है ना, तो इसका एक हेडक्वार्टर होगा, हेड ऑफिस होगा, मे बी इन मुंबई, एक हेड ऑफिस है, ठीक। फिर उन्होंने वहां से हेड ऑफिस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग रीजनल ऑफिस में, तो उन्होंने क्या कर दिया, रीजनल ऑफिस। अब उन्होंने क्या कर दिया, अब उनके डिफरेंट स्टेट्स में ऑफिसेज बने हैं, तो उन्होंने हर स्टेट में एक दो रीजनल ऑफिस बना दिए, है ना, इस रीजनल ऑफिस। अब जो उनकी एक्चुअल ब्रांचेज है वो तो एक कंट्री में 100 के ऊपर हो सकती हैं, वो सब क्या होगी, ब्रांच साइट्स, रिमोट साइट्स, है ना। तो जो मिड साइज नेटवर्क होता है वो रीजनल ऑफिस का माल, मिड साइज नेटवर्क, जहाँ पे अप टू 100 और 120 150 यूजर्स हैं, वो मिड साइज नेटवर्क में आता है, ठीक है। फिर होता है एंटरप्राइज नेटवर्क, या लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क कह सकते हो, लार्ज नेटवर्क। लार्ज नेटवर्क कैन बी वेरी बिग, एक बिल्डिंग में जैसे आपका पूरा सेटअप है, या कोई कैंपस एरिया नेटवर्क है, बड़ा कैंपस एरिया नेटवर्क है जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, वो होता है लार्ज नेटवर्क। और लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क, ओके, उसको क्या बोल सकते हो, लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क। फिर होता है डेटा सेंटर नेटवर्क, डेटा सेंटर नेटवर्क और हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर नेटवर्क, ओके, जिसमें आपको बहुत हाई एंड डिवाइसेस कनेक्ट करनी पड़ती है। अब जैसे स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस है, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक छोटा सा स्विच ले आओगे जिसमें 16 पोर्ट हो या 24 पोर्ट हो, है ना। आपका 16 भी ज्यादा ही बता दिए, 8 पोर्ट्स ले आते हैं, 8 पोर्ट वाला छोटा स्विच आता है, वो खरीद लेते हैं लोग और उससे कनेक्ट कर देते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, बहुत स्मॉल, मतलब लोअर एंड डिवाइस है वो। और अगर आप डेटा सेंटर में कनेक्ट कर रहे हो कोई डिवाइस, वो बहुत हाई एंड होगा, हाई परफॉर्मेंस डिवाइस होगा, ओके। जैसे डेटा सेंटर में क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स का ट्रैफिक जाएगा डेटा सेंटर के थ्रू। एक मिनट रुकना।
ओके, डेटा सेंटर नेटवर्क वेयर, अब देखो डेटा सेंटर क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड साइट होती है, एक हेडक्वार्टर होता है नेटवर्क का, जहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर करते हो, जहाँ पे आप हाई एंड सर्वर्स कनेक्ट करते हो, हाई एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्ट करते हो, सो दैट दे कैन प्रोवाइड हायर स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, राइट। तो वो होता है डेटा सेंटर, जहाँ पे आप नेक्सस स्विचेस लगाओगे और हाई एंड डिवाइसेस कनेक्ट करोगे, सर्वर्स कनेक्ट करोगे, ओके। एंड देन वी हैव सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, जैसे जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, आईएसपी, इनका नेटवर्क भी बहुत बड़ा होता है, थाउजेंड्स ऑफ राउटर्स कनेक्ट होते हैं, एक एक हजार राउटर, दो हजार राउटर कनेक्ट होते हैं, ओके, थ्रू आउट द सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। सो दिस विल बी वेरी लार्ज नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। अब देखो जैसे एयरटेल है, एयरटेल के तो कितने कस्टमर्स हैं, लैक्स ऑफ कस्टमर्स होंगे, राइट, और जो प्रोडक्शन के कस्टमर्स हैं वो भी थाउजेंड्स में, लैक्स में ही होंगे, right? So Airtel, when Airtel will create its service provider network, it will be very big. It can contain up to 1000 routers also. Okay. तो ये नेटवर्क साइजिंग के अकॉर्डिंग नेटवर्क टाइप होते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना। ओके, एंड इट्स अप टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट कि कौन सा नेटवर्क सेटअप कर, राइट। आप उनका यूजर काउंट देखते हो, कितने यूजर्स हैं, कौन कौन सी डिवाइसेज हैं, और सर्वर्स भी हैं, तो फिर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन डिवाइसेस कनेक्ट करोगे आप, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑलवेज ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, या कौन सा सर्वर, कौन सा नेटवर्क सेटअप करने वाले, ओके। अब देखो लैन क्या होता है, लैन, LAN is called local area network. Okay. LAN is created when we want to enable communication between the devices which are connected in same geographical location within 100 meters, you can say. Okay. उसको क्या बोलते हैं, LAN. Okay. LAN का मतलब क्या है कि सारी डिवाइसेस, जो भी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं, वो सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन में कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं LAN. Okay. Here we use layer 2 switches and layer 3 switches, routers and firewalls also. ये नेटवर्क डिवाइसेस आप यूज कर सकते हो, ओके। स्विचेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क में अपने एंड पॉइंट्स को, लैपटॉप्स को, डेस्कटॉप्स को, प्रिंटर्स को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये नीचे वाले डिवाइस देख रहे हो, ये ब्लैक वाली जो नीचे लगे हुए हैं, जिसमें ज्यादा पोर्ट है ना, ये होते हैं आपके स्विचेस। अब पीछे वाले रैक वाले, पीछे वाले रैक्स में भी लगे हैं, ओके, ये होते हैं नेटवर्क स्विचेस। इनसे आप अपने नेटवर्क एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो, अभी आगे डिस्कस करेंगे, ओके। So LAN is called local area network and it is used to create communication between the devices connected in same geographical location. Okay. फिर क्या होता है WAN? WAN is called wide area network. WAN is used to create communication between the devices or between endpoint connected in different geographical location. Different geographical location means, let's say in your organization you have some offices in Mumbai, some offices in Delhi, some offices in Lucknow, some offices in Kolkata, and you want to connect all these offices so that they can communicate, they can share the, they can share the information between them. Then you have to connect them through WAN, wide area network. Okay, through WAN, जैसे internet. Internet is the example of WAN, wide area network. Okay, और आप जो 5G यूज करते हो वो भी क्या एक WAN टेक्नोलॉजी है, वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करती है, ओके। After that, we have MEN, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network is limited to a city or town. When we want to connect our different offices or buildings located within a city, within 50 kilometers of area, है ना, एक सिटी का मान लो बहुत बड़ी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी 50 किलोमीटर के आसपास की होगी, राइट। सो व्हेन यू हैव मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टीपल ऑफिसेज विद इन ए सिटी एंड यू वांट टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन देम, देन you will set up metropolitan area network, okay. Then we have CAN, campus area network. Campus area network is created when we want to combine multiple LANs together. अब जैसे आपके पास मान के चलो एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क आया, या आपको एक यूनिवर्सिटी के लिए नेटवर्क क्रिएट करना है ना। तो अब एक यूनिवर्सिटी पूरा लैन तो नहीं हो सकती, आप पूरी यूनिवर्सिटी के डिवाइसेस को एक नेटवर्क में तो रखोगे नहीं, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, है ना। अब टीचर्स का डिपार्टमेंट होगा, फिर स्टूडेंट्स का डिपार्टमेंट होगा, फिर जो एडमिन्स होते हैं, स्टाफ होता है, उनका डिपार्टमेंट होगा, लाइब्रेरी का नेटवर्क अलग होगा, लेबोरेटरी का नेटवर्क अलग होगा, और हर नेटवर्क में डिफरेंट टाइप का एक्सेस होगा, है कि नहीं। जो इनका आईटी स्टाफ होता है उनके लिए डिफरेंट एक्सेस होगा, उन पे हायर एक्सेस इनेबल होता है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी बिग
एंटरप्राइज नेटवर्क के लिए नेटवर्क डिजाइन करते हैं तो कैंपस एरिया नेटवर्क का ही यूज करते हैं। जैसे किसी कॉलेज का नेटवर्क हो गया, यूनिवर्सिटी का नेटवर्क हो गया, जिसमें डिफरेंट सेगमेंट्स है। अब जो कॉलेज का नेटवर्क है उसमें आप एक टीचर्स का बना दोगे, एक स्टूडेंट्स का बना दोगे, एक एचआर का बना दोगे, एक एचओडीज का बना दोगे, एक जूनियर हॉस्टल का हो जाएगा, एक सीनियर हॉस्टल का हो जाएगा, एक गर्ल्स हॉस्टल का हो जाएगा, एक स्टाफ क्वार्टर का हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंट लैन होते हैं छोटे छोटे, जिसमें 10 20 50 कंप्यूटर्स हर एक लैन में कनेक्टेड है। नाउ यू वांट टू कंबाइन ऑल दीज लैन टुगेदर, राइट? सो यू विल कॉल इट कैंपस एरिया नेटवर्क। अब आप इसको क्या बुलाओगे? कैंपस एरिया नेटवर्क, राइट? अब होता ही है डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, आप देखोगे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। भाई मैं जिसमें पढ़ता था उसमें तो मतलब उन्होंने हर ब्रांच के लिए अलग अलग नेटवर्क बना रखे थे, ठीक है, और सबको उनके अकॉर्डिंग एक्सेस मिला हुआ था, क्योंकि वो लोग अपना ऑनलाइन एक पोर्टल होस्ट करते थे। और उस पोर्टल पे अब जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो मैं लॉगिन करूंगा, मुझे मेरा सर्वर का एक्सेस मिलेगा। और कोई अगर ऑटोमोबाइल ब्रांच का स्टूडेंट है वो लॉगिन करेगा, उसको ऑटोमोबाइल के अकॉर्डिंग सारा डेटाबेस मिलेगा, राइट? So LAN will be used to, you can say, create communication between the devices within same geographical location. And when you combine multiple LANs together, then it becomes campus area network. Okay. SAN is called storage area network. SAN is a specific part of data center. Okay. It is a specific network in data center. जहां पे आप क्या अपने सर्वर्स को कनेक्ट करते हो, सर्वर्स एंड हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन डिवाइसेस। ओके, अब जो यहाँ पे सर्वर्स कनेक्टेड हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा स्टोर कर रहे हैं, राइट? एंड thousands of users are coming to access these servers. So to provide connectivity with these servers, you are going to use high speed bandwidth, you are going to use high speed data transmission devices also, right? जैसे बहुत हाई एंड स्विचेस होते हैं, सिस्को नेक्सस स्विचेस, उनको हम लोग डेटा सेंटर में यूज करते हैं। ओके, और अगर मान के चलो आप कोई लैन सेटअप कर रहे हो, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, तो वहां पे आप सिस्को कैटलिस्ट स्विचेस यूज करोगे। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क में डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस यूज होती है। ओके, आफ्टर दैट वी हैव WLAN. WLAN is called wireless LAN. When you are going to set up a wireless network in your local area network, then it is called wireless LAN. Okay, जैसे अगर आपके किसी ब्रांच साइट पे, अब होता क्या है, मान के चलो एक हॉस्पिटल है अपोलो। अब अपोलो हॉस्पिटल की हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेस है थ्रू आउट द कंट्री, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बना रखे हैं हर सिटी में, लगभग एक अच्छे जो भी सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, सब में बना हुआ है एक अपोलो, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे उनका एक मान लो हेडक्वार्टर हो गया सबसे पहले, अब वहाँ इलाज तो होता नहीं, वो उनका एक प्रोडक्शन ऑफिस होता है, राइट? वो एक हेडक्वार्टर बन गया, फिर उन्होंने क्या किया, अलग अलग हॉस्पिटल खोल दिए। अब जितने भी उन्होंने हॉस्पिटल खोले, वहां सब में कोई ना कोई एम्प्लॉय कनेक्ट हो रहा होगा, राइट? अब वो लोग क्या करते हैं, हर हॉस्पिटल में एक एक दो दो जो भी है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सेस पॉइंट लगा देते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, राइट? और उन एक्सेस पॉइंट से आपके जो भी एम्प्लॉयज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब कनेक्ट हो सकते हैं, राइट? एंड दीज एक्सेस पॉइंट्स विल बी मैनेज्ड बाय हेडक्वार्टर। ओके, और उसको ही हम लोग डेटा सेंटर बोलते हैं वैसे, ठीक है? ये कहाँ से मैनेज होता है? डेटा सेंटर से, राइट? तो वायरलेस लैन आप कहाँ सेटअप करते हो? इसीलिए इसको वायरलेस लैन बोलते हैं, वायरलेस वैन क्यों नहीं बोलते, राइट? वायरलेस लैन बोलते हैं। आप इसको लोकल एरिया नेटवर्क में सेटअप करोगे, जो आपका ब्रांच ऑफिस है, रिमोट साइट है, वहां पे सेटअप करो, बट इट विल बी मैनेज्ड थ्रू डेटा सेंटर। ओके, so whenever you want to provide connectivity to wireless endpoints in your local area network, then you need to set up wireless LAN.